Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about carbohydrate में monosaccharides की कुछ structure हम सीखेंगे. But before than that, I will give you a general introduction of carbohydrate. As we have already discussed that carbohydrate are the most abundant molecule on Earth crust. If we are talking about the biomolecules means carbohydrate, protein, or lipids. Then in those biomolecules, carbohydrate are the most abundant molecule on earth. It is found everywhere in nature. Naturally it occur in the nature products is like bread, grains, or pulses, along with vegetables and fruits and jams. So the main is carbohydrates are the main source of energy for all living organism. So carbohydrate is also a main structural component of most of the tissues, such as that of our most important nuclear organ or nuclear tissue, nuclear genetic material, that is DNA. DNA is also having carbohydrate in its composition. Along with it, this carbohydrate are the main cell wall component of each and every plant cell. So the word saccharides is coming from Greek word saccharum, which means sugar, and molar ratio, the ratio of that saccharide units or monosaccharide unit will combine with each other in the ratio of 1:2:1. 1:2:1 means it will combine the carbon in 1 molar ratio along with hydrogen in 2 molar ratio along with oxygen. So carbon, hydrogen, and oxygen are the main constituent of these biomolecules, along with some of the minor amount or minor constituent, that is sulfur and phosphorus. And most of the added product or edible products also included those sugar or saccharides units, and those products included most of the energy drinks, just like juices जो होते हैं, fruit juices, or the hot soup, or soups which is prepared in winter season. All those included carbohydrate, along with potatoes, or energy drinks and jams, and bakery products included a large amount of carbohydrate. So this is the smaller introduction of carbohydrate. If we look at carbohydrate, carbohydrate is the most generalized and common form of saccharide in the universe, which is naturally occurring saccharides. Mostly we can say it is the primary source of energy in our body, that is it is much more precious for our body. So that is a general introduction again of carbohydrate. So we will go towards the structure of some of the important monosaccharides. We will discuss those structure as we are concerned with those structure in our syllabus. So structure of some of the monosaccharides, as you know, all of you know very well that monosaccharides, mono means one and saccharides means sugar. So monosaccharides are those carbohydrates which will contain only one saccharide unit. It means we can't hydrolyze those carbohydrates to give us a simplest carbohydrate. So we can say this is the simplest form of carbohydrate. If we will hydrolyze it, its constituent or composition will not be a carbohydrate. If it is partially hydrolyzable, अगर हम partially भी इसको hydrolyze कर दें तो ये कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेंगे, ये कुछ और ही प्रोडक्ट बना देते हैं. सो इसको फिर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते. सो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं, सो मोनोसेकेराइड इज नॉट हाइड्रोलाइजेबल फॉर द एंड इट कंटेन ओनली वन सेकेराइड यूनिट. सो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है, एज वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इट कंटेन द स्मॉलेस्ट unit started from 3 carbon up to the common monosaccharides is from 3 carbon up to carbon 7 and so on. लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम कार्बन 3 से कार्बन 7 तक ही स्टार्ट लेते हैं. अच्छा, अब हम जो हमारे पास ट्राइसेकेराइड्स हैं, ट्रायोसिस हैं. ट्रायोसिस मीन्स कि इसमें 3 कार्बन यूनिट्स हैं. तो ट्रायोसिस, या जो जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट को हमने डिफाइन किया था कि इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी
aldehyde or ketone, aldehyde or ketone. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जो हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो इट विल कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट विल कंटेन मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. Polyhydroxy means it will contain many hydroxyl group. Along with the functional group aldehyde, the functional group of aldehyde will having hydrogen at one hand. This carbonyl carbon will having hydrogen at one hand, and at the another one hand there will be an alkyl or aryl group. So हमारे पास जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसमें ये कार्बोनाइल कार्बन दो अल्काइल के बीच में या एक अल्काइल और एराइल के बीच में सैंडविच होता है, तो इसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप. तो हमारे पास जब ये तीन फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड या कीटोन जब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो हम इसको बोलते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. लेकिन ये जो हाइड्रोक्सिल है ये पॉलीहाइड्रोक्सी होगी. इट मींस इट विल नॉट हैविंग ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट विल हैविंग more than one hydroxyl group. So in that case we can't deduce this carbon unit to a 2 or 1. अगर हम 2 और 1 में इसको खत्म कर दें और हम कह दें कि ये ट्राइसेकेराइड की बजाय डाइसेकेराइड यूनिट क्यों पॉसिबल नहीं है, तो वो इस वजह से कि अगर हम ये एक कार्बन भी हटा दें तो यहाँ पे जो टॉप वन कार्बन होगा वो तो या एल्डिहाइड होगा या अगर सेकंड वन की हम बात करें कीटोन तो फिर पॉसिबल ही नहीं है दो में. लेकिन अगर हम इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि ये ऐसा शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें एक कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पॉसिबल होना पॉसिबल हो सकता है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हो सकता. और जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं होगा अलॉन्ग विद एल्डिहाइड और कीटोन तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं कह सकते. सो कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट वन शुगर इज स्टार्टेड फ्रॉम 3 कार्बन. सो दैट 3 कार्बन aldehyde functional group sugar unit is called aldoses. As it is having aldehyde functional group, so the prefix used over here will be ald. As it is a sugar unit, so the OSE will be used for saccharides or sugar. So this is called aldoses, and specifically we can call it, this is carbon 1, 2 and 3, so we can specifically call this triose. And this triose name is glycerol aldehyde, which is the most common intermediate, as you have studied in FEC second year, the most common intermediate in glycolysis, that is glycerol aldehyde, जहाँ पे थर्ड कार्बन पे हम फास्फेट की सब्सटीट्यूशन कर देते थे और इसको हम ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट कहते थे. लेकिन यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हुई तो हम इसको कहते हैं ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड. इसका क्या नाम है? ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड. और अगर इसी 3 कार्बन में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप तो पॉसिबल है, अब इसमें 3 कार्बन है तो यहाँ पे अगर हम इसी ट्रायोस को इसका कीटो फॉर्म ड्रा कर दें जो आपस में एक दूसरे के आइसोमर भी हैं, तो हम यूं ड्रा कर सकते हैं कि टॉप 1 कार्बन के पास होगा CH2OH और जो सेकेंड कार्बन होगा उसके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, जो थर्ड कार्बन होगा उसके पास अगेन CH2OH होगा. सो हमारे पास ये जो इसका कीटो फॉर्म बन गया ट्रायोस का, दैट इज कॉल्ड कीटोसिस. ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, सो इट इज कॉल्ड कीटोसिस. और इसमें 3 कार्बन है. सो अगर हमें याद है ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने पढ़ा है कि इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. सो हमारे पास ये दोनों शुगर यूनिट विल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज 3 कार्बन एटम. इस तरह अगर हम मोस्ट कॉमन शुगर यूनिट की बात करते हैं, सो हमारे पास मोस्ट कॉमन शुगर यूनिट्स में कार्बन 3 से हमने स्टार्ट ले लिया. आगे जब हम कार्बन 4, 5 और 6 की तरफ जाएंगे, सो कार्बन 3 जो है 4 जो है इट इज कॉल्ड टेट्रोसिस
और एरिथ्रोज भी बोलते हैं इसको। सो कार्बन एरिथ्रोज में कितने कार्बन होंगे? एरिथ्रोज में 4 कार्बन होंगे। और अगर हम एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सो दैट इज 5 कार्बन, दैट इज 4 कार्बन, दैट इज कॉल्ड टेट्रोज कॉमनली, एंड दिस टेट्रोज इज कॉल्ड, इसको एरिथ्रोज बोलते हैं। This is tetrose, is it is having 4 carbon along with sugar unit, 4 carbon and sugar unit. So that is tetrose, and the common name is erythrose. It is having again aldehyde group at the top 1 carbon atom, hydroxyl group at second 1 carbon atom, and then hydrogen and hydroxyl group, and hydrogen and हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अगर हम टर्मिनल कार्बन को देखते हैं, तो जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना हो इन केस ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन मोनोसेकेराइड्स की, तो इसमें हम कार्बन के वैलेंसी को देखते हैं और वो कंप्लीट करते हैं। इज ऑल ऑफ यू नो दैट कार्बन बिलोंग टू 4th 1 ग्रुप। कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लेट सपोज ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं? 8। लेकिन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो सेकंड शेल में हमारे पास आते हैं 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। सो कार्बन नॉट ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स। सो हमने जब भी कार्बन की वैलेंसी को देखना है, या अगर हमें कंफ्यूजन हो रही हो कि हम अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करें, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता हो, जिस तरह आप सबको ग्लूकोज का पता है, तो आप कहते हैं कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट दैट कि ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन, एंड दैट ग्लूकोज इज हैविंग आल्सो अल्डो ग्रुप या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप 1 कार्बन एटम। लेकिन वो फिर भी ये स्ट्रक्चर ड्रा करने से हेजिटेट होते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इज ऑल ऑफ द कार्बन वैलेंसी शुड हैव टू बी कंप्लीटेड विद, हर एक कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट का है वो पानी में डुबोया हुआ है। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप यूं समझे कि हर एक कार्बन के साथ एक एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि आप एक साइड पे दोनों H2O लगा दें, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल होगा, दूसरे पे हाइड्रोजन होगा। तो आपके लिए कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग मुश्किल नहीं होगी अगर आपको कार्बन के वैलेंसी का पता है कि 4 वैलेंसी है और हमने हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ कंप्लीट करनी है। तो फिर आप यूं कर सकते हैं कि जैसे आप एरिथ्रोज में हम ड्रा कर रहे थे कि टॉप 1 कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, CHO फॉर्म में भी लिख सकते हैं या C डबल बॉन्ड OH फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो पेंटोज होगा, पेंटोजेज में कितने कार्बन होंगे? पेंटोजेज में 5 कार्बन होंगे, ठीक है। और इसी तरह हेक्सोजेज में कितने कार्बन होंगे? हेक्सोजेज में हमारे पास होंगे 6 कार्बन। अगर हम ये ड्रा कर दें कि ये हमारे पास है पेंटोज, और इस पेंटोज में पेंटोज जो कॉमन फॉर्म है दैट इज राइबोजेज विच इज यूज्ड ओवर देयर इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। और ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, राइबोजेज are ribose which is 5 carbon sugar which is commonly called pentose, ठीक है। अब इसमें भी हम टॉप कार्बन पे अपना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ड्रा करते हैं और बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो हम कंप्लीट करते हैं विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल। लुक एट दिस सेकंड 1 कार्बन एटम, इट इज हैविंग 1 वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सिल प्लस हाइड्रोजन 1 वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल 1 वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। ये सारे के सारे कार्बन के पास एक एक वाटर मॉलिक्यूल है। और जो टर्मिनल कार्बन रह जाता है उसमें एक साइड पे हाइड्रोक्सिल, दूसरे पे हाइड्रोजन, तो थर्ड साइड पे भी हम हाइड्रोजन वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लगा देते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन एंड 5th कार्बन शुगर। नाउ वी विल कम्स टुवर्ड्स द मोस्ट कॉमन शुगर दैट इज हेक्सोजेज। एंड हेक्सोजेज में जो हमारे पास हमारा सबसे प्रीशियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, दैट इज ग्लूकोज। सो हम आएंगे टुवर्ड्स हेक्सोजेज और हेक्सोजेज में स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कुछ कॉमन हेक्सोजेज की। उसमें हेक्सोजेज में हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं हेक्सोजेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास। पहले हम ड्रा करेंगे ग्लूकोज। किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज का। ग्लूकोज में अगर हम देखते हैं, सो दिस टॉप 1 कार्बन इज हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड द रिमेनिंग कार्बन देयर इज hydroxyl group at right side and the second 1 carbon atom,
and at the third one carbon atom there will be always a rotation of hydrogen and hydroxyl for the structural stability, so हमारे पास फोर्थ के लिए फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल रोटेट हो जाते हैं और फिफ्थ में अगेन हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन इस साइड पे हैं, सिक्स्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है एंड हाइड्रोजन है या हम इसको कॉम्युलेटिव या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम हमेशा से टर्मिनल कार्बन है वो मैं लिख देती हूँ CH2OH। सो हमारे पास ये कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ these hexoses is C6H12O6। अभी इसके बाद जो मैं ड्रा कर रही हूं वो सारे के सारे इसी ग्लूकोज के या एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। ग्लूकोज के बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगी गैलेक्टोज की, ठीक। गैलेक्टोज इज आल्सो एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। गैलेक्टोज में सेम हमारे पास आता है गैलेक्टोज, थोड़ा ऊपर ड्रा करती हूं। दिस इज aldehyde functional group, top one carbon, and the second one carbon will having the same chemistry, hydroxyl group. Third carbon will having a rotation of hydroxyl and hydrogen group, and the fourth one carbon will again having hydroxyl and hydrogen. बट इस केस में हमारे पास ये 1 2 3 एंड फोर्थ पे ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, फोर्थ पे हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है इन केस ऑफ ग्लूकोज, लेकिन इन केस ऑफ गैलेक्टोज ये हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे चला जाता है एंड फिफ्थ में ये अगेन राइट पे आ जाता है एंड सिक्स्थ में ये वही रहता है CH2OH। सो डिफरेंस इसमें कहाँ पे आ रहा है, ग्लूकोज से डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज at fourth one carbon atom 1 2 3 4 5 6। look at this one fourth carbon atom। इसको अगर हम देखते हैं सो ग्लूकोज के केस में ये फोर्थ कार्बन एटम जो है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे अटैच है, लेकिन इन केस ऑफ गैलेक्टोज दैट इज अटैच एट लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस आ रहा है, glucose and galactose। this is the structure of glucose। so glucose और galactose एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, only at the position of hydroxyl group is different at carbon number 4। all the functional group and hydroxyl and hydrogen are similar except in that of carbon number 4 hydroxyl group। over there the hydroxyl group is at right side in case of glucose, but that hydroxyl is on left side in case of galactose। अब हम आते हैं towards the mannose structure of glucose, galactose and fructose। the most common one is fructose, another one hexose which is having keto functional group। again its molecular formula is C6H12O6। और जब हम ये ड्रा करते हैं so top one या first one carbon atom is having CH2OH and second carbon atom is having ketonic functional group and the third carbon atom is having hydrogen and hydroxyl different hydrogen and hydroxyl at one side and another one side, fourth one is having hydroxyl at right and hydrogen at left। और इसी तरह हमारे पास ये फोर्थ हो गए 5 carbon and sixth one carbon atom। so this is the structure of fructose which is also having all of the composition of the hydrogen and hydroxyl are same to that of glucose but it will having ketonic functional group। so यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बेस्ड पे एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या चीज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, फंक्शनैलिटी का, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो ये हमारे पास ये भी हेक्सोज हैं, इसमें अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन काउंट कर दें ऑक्सीजन तो कार्बन 6 आएंगे, हाइड्रोजन 12 आएंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। सेम इज द केस विद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और इसी तरह हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेनोज। स्ट्रक्चर ऑफ मेनोज में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ, ये वाला फ्रक्टोज हटा देते हैं, यहाँ पे मैं मेनोज का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। मेनोज में डिफरेंस आ रहा है ओनली एट कार्बन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम ले लें तो उसमें भी C double bond O and H, that is aldehyde functional group, and at carbon number 2 this is having hydroxyl group at right side. So हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा जिस तरह थर्ड कार्बन पे होता है. सो इसी तरह हमारे पास ये सेकंड कार्बन पे भी रोटेट हो जाएगा. सो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मेनोज है 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इसमें ग्लूकोज में और मेनोज में एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन ये इसमें जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की डिफरेंस आ रही है दैट इज इट कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 पे जस्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है. कार्बन नंबर 2 पे अगर हम ग्लूकोज पे देखते हैं तो हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड पे है, लेकिन अगर हम मेनोज के केस में देखते हैं तो ये कहाँ पे है, मेनोज के केस में ये कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है. लेकिन इन सब में 6 कार्बन है और ये चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर थे, सो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ दैट ग्लूकोज इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन ये इसका पार्ट ए था. पार्ट बी में मैं इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन एक्सप्लेन करूंगी. हावर्थ प्रोजेक्शन मींस साइक्लिक फॉर्म ऑफ ऑल दीज मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स में मैं मोस्टली हेक्सोसिस को या पेंटोसिस की स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रा करेंगे, उसकी हावर्थ प्रोजेक्शन देखेंगे और उसकी लिटिल बिट प्रॉपर्टीज भी देखेंगे along with some disaccharide and reducing and non-reducing sugar. So all these should have to be discussed in my further one lecture. Thank you.